to this edition of the Kashmir Festival, organized by Global Kashmiri Pandit Diaspora in association with I Am Buddha. Today we have with us special guests. We have Mr. Vivek Agnihotri, award-winning author and director, and National Award-winning actor and producer, Pallavi Joshi ji. Welcome, Vivek ji. Welcome, Pallavi ji. Namaste, Dimple ji. It is wonderful being here. I have been not been able to follow this festival completely because we've been busy shooting, but I've caught it in bits and pieces, and it's going phenomenally well, I must say. Thank you so very much. It's all due to the selfless volunteers from the Global Kashmiri Pandit Diaspora side and the wonderful team at I Am Buddha who've been like spending sleepless nights trying to get it together every day. So ये बताएं आज का एपिसोड है हमारा द कश्मीर फाइल्स द फिल्म के बारे में। तो बॉम्बे के विवेक अग्निहोत्री पल्लवी जोशी का कश्मीर से दूर दूर तक कोई संबंध दिख नहीं रहा। So how did this whole thing come into place? विवेक जी। यानी ये एक मिथ सी क्रिएट हो गई है कि कश्मीर से हमारा क्या संबंध है क्या नहीं है। और एक्चुअली आई ऑलवेज थॉट दैट यस कश्मीर से हमारा क्या रिश्ता है, क्योंकि जब मैं आई वाज बोर्न इन ग्वालियर तो अभी सडनली मुझे एकदम से याद आ गया। तो हमारे पड़ोस में एक कॉल फैमिली रहती थी एंड एवरीबडी वुड ऑलवेज टॉक कि वो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं। लेकिन हमारे पास में कई सारी मराठी फैमिलीज भी रहती थी, तो उनको रीजनलाइज नहीं किया जाता था कि देखो ये लोग महाराष्ट्र से आए हैं या कोई पंजाब से आए हैं। और इंडिया में देखिए कश्मीरियों को ऐसा आइसोलेट कर दिया जाता था बिकॉज परहैप्स इट्स बहुत दूर है। तो यही लगता था मुझे। लेकिन जब इस फिल्म के बारे में मैंने पढ़ना रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे लगा कि हर आदमी जो हिंदुस्तान में है कश्मीरी ही है, क्योंकि इतना ज्यादा अगर आप देखें फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजिकल स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस जो है ये कश्मीर से ही शुरू हुआ। तो एक जो दो माइथोलॉजीज थी, एक तो कश्मीरी पीपल वर मेड टू बिलीव दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द इंडिया, और इंडियंस रेस्ट ऑफ द इंडिया वाज मेड टू बिलीव दैट दे आर डिफरेंट फ्रॉम कश्मीर। ये पता नहीं कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, आई हैव नो क्लू। सो वी सेड कि in this film we must destroy, we must demolish this theory, and people have to understand that without Kashmir there is no India. It is impossible to think of India. Can you think of India without Saraswati? Can you think of India without Shiva? Can you think of India about all the great literature, Abhinav Gupta? Can you think India without Panchtantra? Forget समाज का तो सब कुछ भूल जाइए। बहुत बेसिक लेवल पे अगर सोचिए तो क्या हायर लिटरेचर कालिदास के बिना संभव है? और क्या हम लोग आयुर्वेदा के बिना, योगा के बिना सोच सकते हैं इंडिया के बारे में? और इन चीजों के बारे में सोचना है, then you have to go back and think about Kashmir. So Kashmir, I think, is more integral to India when it comes to the cultural, religious, ideological, philosophical part. So this film is more about integrating Kashmir and India and making people realize that we cannot exist without each other. Very, very beautifully said. I mean, Kashmir is an integral part of India. And in fact, through the Kashmir Festival, what we've been trying to showcase is the contribution of the region and its original people to the entire civilization. And in fact, in the past, people used to travel to Sharda Peeth to, study. Scholars would come from all over the country. And, there are instances of documented history where, they talk about scholars from Central India and Bengal staying in hostels constructed for them in the valley. So yes, this looks like a great effort. Pallavi, I saw you involved in the initial groundwork, the research work. I mean, we hardly see producers going to such great lengths. आप अपने director के साथ, विवेक जी के साथ, you travel from region to region, country to country. And the kind of primary research you guys have been, I've witnessed it only through social media, of course. So it's very awe-inspiring. That come about. To begin with, Dimple, I've always been extremely fascinated by research-based projects. And that has been, my core strength as a producer ever since I started doing television also. But what really, made a dent
in this case was the fact that I had absolutely no idea about what had happened in Kashmir. Thing is that, you know, I am a Bombay person. I have been born and raised here. And Bombay is so far away from the, you know, the political circle of Delhi. And people here are, you know, very different kind of people. A normal, you know, common man is not really politically motivated or politically involved. And the culture of Bombay is that we let people be. I mean, if I know you as Dimple, that's enough for me. I don't need to know your surname also, you know. Indeed. So, baat ye hui thi that in 1990, I shot for a film called Tehelka. And we were supposed to shoot the entire film in Kashmir. And I was really looking forward to, you know, visiting the valley because मैं कभी गई नहीं थी वहाँ पे. And then suddenly you know, there was a change in plans and the producers called up and they said कि अरे वहाँ कुछ थोड़ी terrorism की problem चल रही है तो हम लोग वहाँ नहीं shoot करेंगे, हम लोग मनाली में shoot कर रहे हैं. So I said, अरे यार मेरा कश्मीर देखना रह गया. Doesn't matter, I'll go there for my next film. And while the incidents were happening there in the January of 1990, I was shooting for Tehelka. I was romancing in the snow for the camera. And, you know, everything I was really worried about was whether my wigs are in place, whether my makeup is right, and whether I'm doing a good job in front of the camera, without realizing what was happening, you know, in the adjoining state. So much so that when I came back also, all the years that, you know, I've lived in Bombay, I didn't know that the problem was so massive. मुझे ये मतलब भनक भी नहीं थी कि Hindus are absent from the valley. ये तो जब we started meeting people, जो कुछ जितने भी कश्मीरी पंडित हमारे फिल्म इंडस्ट्री में है, कुछ जो हमारे दोस्त बन गए, उनसे थोड़ा मैंने सुना उसके बारे में. And I said, oh, अच्छा ये है. And it was only when Vivek started working on the film and when we started the research that I realized that here I am. I call myself an aware citizen. I travel so much, I read so much, and yet I'm completely unaware of what's happening in, you know, one state of my own country. And it didn't sit well with me at all. And I decided I have to get, you know, into this. मैं बिल्कुल उसकी जड़ तक पहुंच के मैं पूरी फैक्ट जानना चाहती हूँ. मैं हर वो चीज जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से वो शायद हम फिल्म में दिखाए या ना दिखाए, लेकिन हमारा जानना एज मेकर्स बहुत जरूरी है ताकि हर एक इंसिडेंट जो हम फिल्म में दिखाएं वो हम पूरी ऑनेस्टी के साथ दिखा सकें. And then there was no turning back. Of course, when I met all the wonderful people from the community, एक ऐसा हो गया जैसे हमारी फैमिली थोड़ी एक्सटेंड हो गई है ऐसे हमें लगता है, बिकॉज अभी इतने सारे लोग हमारे अपने हो गए हैं. तो जब अपनी बात आ जाती है, अपने परिवार की बात आ जाती है, तो आप डिसऑनेस्ट तो हो ही नहीं सकते. तो उस तरह से हम बहुत ऑनेस्टी के साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए. और अभी देखते हैं फिल्म कैसे बनी है. खैर, वी ट्राइड टू गिव इट आवर बेस्ट, बट this was a subject which needed to be, you know, which needed to be picturized, which needed to be spoken about. And I hope that I don't care what happens at the box office really, because I've never been that kind of an actor. But I just want people to, you know, take Bombay and, you know, parts which are like far away from the politics, उनको समझ में आए कि हमारी देश में एक पूरी कम्युनिटी के साथ ये इतनी बड़ी घटना हुई है और हमें शायद पता भी नहीं है उसके बारे में. तो ये दिखाना बहुत जरूरी था. तो इस वजह से मैंने कहा मैं हर चीज में, एंड ऑफ कोर्स बीइंग विवेक्स वाइफ आल्सो, उनकी पूंछ पकड़ के तो हर जगह जाना ही है. शादी उसी लिए की है, साथ साथ रहने के लिए. So that was, of course, another reason. Wow. So, I mean, I really appreciate, you know, this authenticity and vulnerability. You accepted that you were not aware, and this change in awareness. So now you're trying to make sure that this actually reaches the consciousness of the nation, the collective consciousness, which is really such
I mean, it's overwhelming, as you were saying. So I felt so overwhelmed by that. So I would personally like to thank you, and also on behalf of the community, because it's been 31 years और हमारी बात अभी तक नहीं पहुंची उन कानों में जिनमें पहुंचनी चाहिए थी. विवेक जी, एक बात बताइए कि ये एक मूवी जो है, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि ये ना बने, और बहुत फोर्सेस भी रहे होंगे जो नहीं चाहते कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, इस प्रोजेक्ट को एक डिफरेंट लेंस से प्रस्तुत करना चाहते हैं. तो did you face any issues while, you know, even your primary research, we'll talk about the shoot and all later, but did you face any challenges? I intellectually, if you ask me, I know, yes, what kind of resistance, what kind of criticism, what kind of opposition I face. Intellectually, I know all these things. I'm not a young boy who doesn't know how this world works. So, जैसे मुझे सबसे पहले तो यही पता है कि इसके पहले भी कश्मीर पे एक फिल्म आई थी, तो विनोद चोपड़ा की. तो उसको लेके जब उस फिल्म की क्रिटिसिज्म चालू हुई तो लोग, कई सारे ऐसे लोग थे, they started blaming me for that as if I have conspired against them. But it's foolish to think like that. So I know they will also get back at me thinking that okay, हमारी फिल्म खराब हुई तो इनकी भी बिगड़नी चाहिए. मुझे ये भी पता है पॉलिटिकल साइड से भी there are lots of people who are going to oppose it because it won't suit their agenda. जो ऑलरेडी अभी चालू कर दिया है, कई सारे लोग हैं वो करेंगे. और मुझे ये भी पता है कि राइट विंग से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली हम विंगिंग तो बाद में आते हैं, फर्स्ट वी आर ह्यूमन बीइंग, सो लॉट ऑफ पीपल गेट जेलस, यू नो. सो अब जैसे कोई अब फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह की फिल्में बनाते हैं, वो भी जेलस हो जाएंगे, तो वो होगा. अलग अलग लेवल पे सब लोग होंगे. पर एक्चुअली मैं आपको बताऊं, दिल की बात अगर बताऊं, तो मुझे इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. आई मीन ये कुछ ऐसा हो गया. एवरीथिंग इन लाइफ इज नॉट calculation. Yes, life is a calculation. I understand that most, but few things happen in your life. They just happen, and that's why I always say, जिन लोगों को believe करना है करें, जिनको नहीं करना है करें. We don't care about it. क्योंकि it's about us. It's not about them. That this we are just a medium. It just happened. I won't name, लेकिन कहीं हमारे दूर दूर तक mindset में भी नहीं था इस subject पे फिल्म बनाना. मेरे लिए बहुत ऑर्गेनिकली, बहुत नेचुरली, आई शुड हैव मेड अ फिल्म ऑन भोपाल फाइल्स एक्चुअली, क्योंकि मैं भोपाल का हूँ. एंड एवरीबडी वाज विलिंग टू पुट इन मनी. अभी भी मैं बोलूँ भोपाल में बनाता हूँ, पीपल आर विलिंग टू पुट इन मनी इन दैट, राइट. पर भोपाल के इतने ऑफर्स, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आप भी जानते हैं उनको, प्रोड्यूसर्स भी हैं वो, they actually they have been coming and saying कि कश्मीर फाइल्स मत बनाओ, ये बना दो, टेक मनी, एंड दे बीन मीटिंग मी. पर वो कभी मेरे दिल से हुआ नहीं. I mean, ऐसा कुछ बना नहीं संयोग की वो हो पाए. और इसका देखिए, मैं किसी काम से कहीं ट्रेवल कर रहा था अमेरिका में. आई मेट अ जेंटलमैन जिनका नाम अभी नहीं लूंगा, somebody that people don't, he doesn't want me to name him. उन्होंने मुझसे ऐसे ही बस एक बात बोली कि अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएगा इसको. एंड दैट हैड एन इम्पैक्ट. मैं 18-20 घंटे की फ्लाइट जब आ रहा था बम्बई, तो दो चीजें मैं ऑनेस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ. एक, माय फादर ट्रांसलेटेड ऑल कालिदास, तो आई हैव ग्रोन अप विद कालिदास. तो मैंने कालिदास बहुत पढ़ा है, शायद लोग जानते भी नहीं हो इस बारे में. और क्योंकि फिल्म मेकर्स के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं शायद इसलिए. और मेरे कालिदास से बड़ा लगाव भी है. एंड आई एक्चुअली थिंक दैट कालिदास इज वन ऑफ द greatest writers in the history of this humanity, you know. Though Shakespeare is very popular even in India, but जिस दिन हम लोग कालिदास पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या वैल्यू है. तो and I couldn't do what I should have done as a son or as a child. So perhaps that was also one of the reasons. It takes me closer to my father, you know, when I think about Kashmir. So, उसके वैरायटी ऑफ रीजन से, मुझे पता नहीं क्यों. और फिर कश्मीरी कम्युनिटी ने भी हम लोगों को अनइंटेंशनली कहीं पे शायद इमोशनली उस रास्ते पे ले जाने पे मजबूर भी कर दिया. अगर उन लोगों से वास्ता हमारा नहीं पड़ता, अच्छे लोगों से, समझिए फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कश्मीरी पंडित जो है वो बड़ा दूध का धुला है और वो एकदम जेंटलमैन है. हर आदमी के अपने होता है, हर तरह का आदमी.
बट कुछ ऐसा संयोग बन गया, तो सिर्फ कोइंसिडेंस की हम सब उस रास्ते पे जाते रहे। तो दिस वाज द सेकंड रीजन। और तीसरा जो है वो मेरा अपना, दिस इज माय वे ऑफ रोमांटिसाइजिंग माय ओन लाइफ। मैं, हमारे घर में, हमारे लोग अलग समझते, पर हमारे बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं थी। हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही थी मूर्ति। जब मैं छोटा था, जब 5-6 साल के जो बच्चे, जो कंडीशनिंग होती है दिमाग की, तो हमारे सिर्फ 2 ही मूर्तियां थी। सिंस माय फादर वाज अ प्रोफेसर एंड ऑल, और वो भी उनके स्टूडेंट्स ने उनको दी थी। एक थी हमारे शिवा की मूर्ति, पल्लवी ने भी देखी है वो, और वो आजकल की जैसी शिवा की होती है उस तरह की नहीं थी बिल्कुल भी। वो बहुत प्योर और एक बहुत ही ईमानदारी से बनाई हुई थी, जिसमें कि एक सर्प ऐसा गले में, एंड शिवा इन द प्योर फॉर्म इन ब्लू कलर की, एक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की वो, इसको की एक शीशे के उसमें रखा जाता था अलमारी में, स्पेशल केस, शोकेसेस जो शोकेस में। हाँ हाँ, करेक्ट। और मैं ये बात, क्योंकि ये एक प्रोग्राम अच्छा पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल टाइम, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ ये। एंड आई डोंट वांट इट टू गेट लॉस्ट इन सोशल मीडिया सुपरफिशियल कंट्रोवर्सी। और दूसरी हमारे यहाँ थी एक सरस्वती की, जो आज भी भोपाल में, हालांकि वो घर हमने छोड़ दिया है, बेच दिया है, इट्स नॉट आवर हाउस, लेकिन जो लोगों ने लिया है वो अभी भी वहां रखी है। मैं अभी गया था पिछले महीने, तो भी मैं देख के आया, पल्लवी ने देखी है वो। और वैसी सरस्वती आज की तारीख में आपको कहीं मिलेगी नहीं, और वो कश्मीर से ही आई थी। जो मैंने आपको बताया, ग्वालियर में हमारे जो पड़ोसी लोग थे कौलशाद, शायद उन्हीं ने हम लोगों को दी थी, मेरे पैदा होने के पहले से थी। वो जो सरस्वती थी वो हमेशा, और मेरी हाइट पे रखी हुई थी, इसलिए आई ऑलवेज कुड सी दैट ऑल द टाइम। और वो जो सरस्वती थी, जो जिस तरह से सरस्वती को डिस्क्राइब किया जाता है हमारे टेक्स्ट में, बिल्कुल उस तरह सी थी। ट्रांसपेरेंट कपड़े, वो कमल, वो वीणा, द स्वान, वो सब, हाँ वीणा। तो मेरे दिमाग में उसका इंप्रेशन बहुत था, और चूंकि टीचर का बेटा था, तो हमेशा ये सुना था कि सरस्वती इज द रियल गॉडेस। तो जब कश्मीर का चालू हुआ, तो मेरा कनेक्शन भी इतना ज्यादा हो गया। और मैं इतना ज्यादा उस तरह का रिलीजियस नहीं हूँ, रिचुअल्स वाला, बट मैं अंदर से बहुत स्पिरिचुअल हूँ। और जब मैं स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सोचता हूँ, तो शिव और सरस्वती के अलावा तीसरा कोई नाम भी, इमेज भी नहीं आती मेरे दिमाग में। तो इसलिए भी मेरे लिए बहुत नेचुरली मैं कनेक्ट हो गया। तो ये 3 रीजन है आई गॉट कनेक्टेड। वन, somebody who triggered this feeling in me कि ऐसा क्या है कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कोई बोलेगा ही नहीं है ना। रियलाइज यस, कश्मीर पे फिल्म बनाना इज सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन दिस कंट्री। कभी इसके बारे में लिखेंगे बुक या मेमोयर, या कभी बताएंगे, then people will understand that it's so difficult to make a film on Kashmir. I mean, it's clear that you are divinely guided, and this movie is more like a purpose than just a commercial venture for the both of you, from what I hear of what you were saying. Pallavi ji, इस movie के लिए casting, like actors, music directors, lyricists, वो सब आपकी जो फर्स्ट चॉइसेस थी वे ही थी, या कुछ उसमें कुछ फेर बदल होते गए? इस मामले में तो बहुत फेरबदल हुए। एक के बारे में तो बहुत ही ट्विटर पर चर्चा भी हुई थी काफी। एक्चुअली चर्चा हुई थी, मुझे नहीं पता। हाँ, क्या चर्चा हुई थी? जिस कैरेक्टर के लिए हमने पुनीत इस्सर को कास्ट किया था उसको लेकर। ओ हाँ, वो तो डिवाइन इंटरवेंशन है। हाँ वो तो मतलब यूं ही। तो हमारा एक्चुअली जो ताशकंद में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि जो हमारी फर्स्ट चॉइस थी वो लोग हमें मिल गए थे। इसमें ऐसा हुआ नहीं, लेकिन इसमें जो हुआ वो आप मुझे विश्वास नहीं करेंगी जब मैं आपको बताऊंगी। इट वाज सच अ परफेक्ट फिट। मतलब ऑन द सेट्स हमको, विवेक एंड आई, वी there were, I mean, number of times when we spoke to each other and we said, thank God वो वाली casting नहीं हुई, thank God ये हो गया, you know, because जो निकल के आ रहा था, जो उनकी तरफ से जो contribution था, वो एक इतना अलग level पर था, and both of us, we felt so blessed to have the final cast on hand, you know. So एक तो फिल्म होती है जो आपकी ड्रीम कास्ट होती है, जो आपको सब मिल जाता है। इस फिल्म में वैसे हुआ नहीं, बारिंग 2 people who we had decided from the word go, that was Mithunda and Anupam ji. So of course they did the film with us. लेकिन बाकी
हर कास्ट इसमें बदली. Every single person that we had decided on earlier, we changed everyone. और वो somehow ऐसा हो गया कि वो इतना perfect fit हो गया ना, वो जैसे जिक्सॉ लग जाते हैं ना pieces एक दूसरे के साथ, वैसा हो गया. And at the end of the shoot yesterday, when we wrapped the whole film, we were like, thank God we made those decisions. You know, some we were forced to make, some happened on their own, but जो हुआ वो बहुत अच्छे के लिए हो गया finally. Wow, that's so good to hear. विवेक जी, शूटिंग आप लोगों ने पूरी तो कश्मीर में नहीं की, तो how did you manage it all? कश्मीर का ऐसा हुआ था कि मैं जब लास्ट ईयर हम लोग शूट करने वाले थे इस फिल्म को, तो उसमें बहुत सारा मेजर हिस्सा कश्मीर में ही करने वाले थे और काफी सारा जम्मू में करने वाले थे. तो कैंप वगैरह के सीन्स जो है, गीता भवन के सीन्स हैं, ये सारे हम लोग वहाँ जम्मू में करने वाले थे. तो मोरलेस हम लोग ऑलमोस्ट 100% फिल्म नहीं शूट करने वाले थे. कुछ एक थोड़ा बहुत एक पोर्शन बम्बई में कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली, बट यस द आइडिया वाज टू. और मैं गया भी वहां, सबसे मिलके भी आया. पर फिर क्या हुआ, मैं वहाँ उस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर साहब थे उनसे मिला. तो मैंने कहा कि साहब हमारी सिक्योरिटी का करा दीजिए इंतजाम ये वो. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ ये लन फन में फंस रहे हैं, 30 साल पुरानी कहानी खोद रहे हैं और सब कर रहे हैं. आप लव स्टोरी बनाइए कश्मीर के बारे में. Wow. तो आप यकीन नहीं करेंगी, जनरली लोग हिंदुस्तान में यकीन नहीं करते हैं कि इतने बड़े आईएएस ऑफिसर के सामने कोई आदमी कैसे रिएक्ट करता है. सब लोग बाबूजी सर मालिक करके मुस्कुराते रहते हैं. जी. तो मैं वहीं पे खड़ा हो गया और मेरे साथ में आपकी कम्युनिटी के भी एक दो लोग थे वो जानते हैं इस बात को, श्रीनगर की थे. मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी फिल्म खुद बना लूंगा. And I just got up and left. And mentally then I decided कि I'll make this film with security or without security. और फिर मैं वहाँ डीजीपी साहब से भी मिला था. उन्होंने अभी कहा हाँ कर तो देंगे, पर आप और अनुपम खेर साथ में ना आइए, ये तो डबल रिस्क हो जाएगी. और ये एवरीबॉडीज एटीट्यूड वाज कि यार क्यों इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना रहे हो, मत बनाओ ना, हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो. तो अब प्रॉब्लम आप देखिए, चीजें बहुत गहरी हैं. मैं इसलिए नहीं इतनी गहरी क्यों 30 साल से ये प्रॉब्लम है. 30 साल से इसलिए प्रॉब्लम है कि सब लोग कहिए यार काम क्यों बढ़ा रहे हो, रिस्क क्यों बढ़ा रहे हो, वैसे इतनी समस्या है उसके ऊपर ये, और इसीलिए कोई हिम्मत नहीं करता. तो एक तो दो अच्छी चीजें हो गई. तो अच्छी मतलब अगेन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. एक तो कोविड हो गया, हम लोग निकलने वाले थे कश्मीर के लिए, सो वी डिसाइडेड वी वोंट टेक अनुपम खेर ओवर देयर. और मुझे भी ये बोल दिया यहाँ मत जाना वहां मत जाना. वी वर लीविंग ऑन द 15th और 16th ऑफ मार्च फॉर कश्मीर. हमारे सारे टिकट बुक थे, सब वो वेस्ट हो गया पैसा हमारा. एंड उसी दिन शाम को 10 बजे, 9:30 बजे वी गॉट अ न्यूज. मुझे फोन आया होम मिनिस्ट्री से, कहाँ से, हाँ कि 2 दिन में शायद मोदी जी पूरे इंडिया में सेक्शन 144 लगाने वाले हैं. नहीं तो आप देख लीजिए. और उसी वक्त न्यूज आई इमीडिएटली आफ्टर 10-15 मिनट्स की इन जम्मू एंड कश्मीर दे हैव इम्पोज्ड सेक्शन 144, व्हिच दे डिड. तो हम जाते कैसे वहां, तो हमने कहा चलो. तो वी कॉल्ड अवर प्रोडक्शन पीपल. पलड़ी रात को 10:30 पौने 11 बजे फोन किया कि कल सुबह के टिकट जो है उनको पोस्टपोन कर दो, अभी होल्ड कर दो, जो भी है वी कांट गो. और हमने सोचा 2-4 दिन में हम लोग चले जाएंगे वहां. और इतना टेम्पटेशन और प्रेशर था बिकॉज वी हैड स्पेंट लॉट ऑफ मनी, बुक्ड लोकेशंस, कि अगले दिन चले ही जाना चाहिए. तो हमारे प्रोडक्शन वाले तो क्या है छोड़ो ना, ये सब तो चलता है इंडिया में, चलते हैं. और वहाँ लोकल जो प्रोड्यूसर्स थे, लाइन प्रोड्यूसर्स, वो लड़के वो कहते नहीं हमारे यहाँ तो कोविड नाम कोई जानता भी नहीं है, आप आ जाइए. वो तो पीछे ही पड़े थे कि आ जाइए. बट गुड वी टुक अ डिसीजन. हम नहीं गए. अगर हम चले गए होते तो वहां फॉर मंथ्स वी वुड हैव बीन स्टक. क्योंकि कितने 1-2 महीने तक तो फ्लाइट ही नहीं चली कश्मीर से, और हम गाड़ी से तो आ ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं था. और इतने 70 लोग कैसे आते. तो हम बच गए. एक वो हुआ. उसके बाद जब ये था कि क्या करें, या तो बॉम्बे में सेट लगा के करें. सेट लगा के लिए ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, सेट लगा के करते तो लाइफ इतनी इजी होती. इट वुड हैव बीन वंडरफुल यू नो टू शूट हियर, बिकॉज इट्स सो कंफर्टेबल एसी स्टूडियो में बैठ के शूट करना. लेकिन एक आप जब फिल्म आएगी उसकी मेकिंग देखिएगा. अच्छा हुआ हम लोगों ने नहीं किया था. उत्तराखंड में
मुझे चीफ मिनिस्टर मिल गए तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जाइए, तो मैं वहां गया तो वहां पे भी बात नहीं बन रही थी। हिंदुस्तान कोई भी आपके जानने वाली सरकार हो, चाहे कोई 10 और नरेंद्र मोदी आ जाए, पर हमारे खून में तो करप्शन घुसा ही हुआ है ना, तो उसको आप गली गली में तो नहीं करप्शन ठीक कर सकते हैं। तो मैं जब गया तो वहां पे हम करें क्या, पहाड़ तो नहीं शूट करने, कश्मीर का मतलब यूनिट सिटी दिस एंड दैट। तो आई सेड कि मसूरी इज द ओनली प्लेस। तो मैंने कहा वहां पे वो लगाना पड़ेगा, ये सेट लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे अदरवाइज, हाउ विल वी रिक्रिएट कश्मीर। तो वहां सब लोग मना कर रहे थे कि नहीं होगा, नहीं कभी मसूरी की हिस्ट्री में नहीं रुका ट्रैफिक, कहते एक मॉल रोड है वहाँ कार भी नहीं चलती, आप वो थोड़ी रोक सकते हैं। So then I met the chief minister and I must really thank that कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं बात को within 10 seconds। तो मैंने उनसे बोला देखिए ऐसा आपने मुझे इनवाइट तो किया है, लेकिन मैं यहाँ के अगर कश्मीरी नहीं बना सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ क्या पहाड़ शूट करने थोड़ी आया हूँ, फिर मैं केदारनाथ पे फिल्म बनाता हूँ, तो कश्मीर में आप क्यों मुझे बुला रहे हैं करने के लिए। तो मैंने और बोला उन्हें बड़े, मैंने कहा देखिए मैं आपको, आप चाहे जो समझे, मैं यहाँ शूट करूंगा तो पूरी फिल्म करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, और एक ही कंडीशन में करूंगा, दैट मसूरी यू हैव टू ब्लॉक फॉर मी एंड आई हैव टू मेक कश्मीर आउट ऑफ इट। एंड इंस्टेंटली ही सेड यस, आप करिए। मैं अपने लोगों को बोल दिया एंड यू वोंट बिलीव इट, हमने वहां सेट लगाया, जो वो जो लाइब्रेरी चौक है वहां का मेन मॉल रोड, कभी इतिहास में नहीं लगा और शायद लगेगा भी नहीं। तो चीजें होती गई एंड वी शॉट a lot of film in Uttarakhand. But then Kashmir we had to shoot because without shooting in Kashmir, how do you make Kashmir files? और सबने मना किया था, कुछ सिक्योरिटी थी। अल्टीमेटली आई डिड नॉट इवन इन्वॉल्व द गवर्नमेंट, किसी को कुछ नहीं बताया। दे आर लाइव प्रोड्यूसर्स जहाँ पे हैं, मैंने उनसे कहा हम लोग आ रहे हैं, हम अपनी यूनिट लेके वहां गए। जाने लगे तो पहले तो स्नोफॉल हो गया, उसमें फंस गए, पूरे दिन दिल्ली बैठे रहे हम लोग, फुल डे वी वर सिटिंग एट दिल्ली एयरपोर्ट। उसके बाद फिर हम लोग बॉम्बे आ गए, फिर बॉम्बे से हमने फिर जाने की कोशिश की तो पूरे दिन मुंबई एयरपोर्ट पे बैठे रहे, जा नहीं पाए स्नोफॉल के चक्कर में। फिर हमारी यूनिट जो थी पूरी अमृतसर बैठी रही पूरे दिन, होल डे। पूरा गाइस सुबह 5 बजे की फ्लाइट, 5:30 की फ्लाइट लेके निकले और रात को 11 साढ़े 11 बजे वापस आए बम्बई। पूरे दिन अमृतसर में कहते रहे फ्लाइट जाएगी जाएगी जाएगी, गई नहीं, और रात को उनसे बोल दिया नहीं बम्बई जाइए बम्बई आए। सबने बोला इतना पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप जानती है ना हम लोग को एक्सेस लगेज बहुत पैसे देने पड़ते हैं, रन्स इनटू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज, प्लस टिकट कैंसिल होते हैं, ये जो वेदर के कारण होते हैं, बड़ा उसमें भी एक बड़ा स्कैम है दुनिया भर का, तो होते रहे। बट आई से चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर बिक जाए, बट दिस वी विल डू, क्योंकि अब जिद है। और अल्टीमेटली हम वहां पहुंचे। अब आप ऐसा देखिए, जिस दिन हम जा रहे थे वहीं पे एयरपोर्ट पे, क्या उसके एक दिन पहले पल्लवी को फोन आया है किसी एक्टर का, who said कि somebody from Jammu wants to talk to विवेक जी, तो उनसे कहिए उनका फोन उठा ले। मैंने फोन उठाया तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फोन था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया एंड ही सेड कि विवेक जी आप कश्मीर में शूटिंग करने आ रहे हैं और हमको बताया नहीं, हम लोग ने अभी कल ही एक कश्मीर पॉलिसी बना, वो फिल्म पॉलिसी बनाई है। तो मैंने कहा मैं किसको बताऊं, आप लोग कुछ करते तो है नहीं, आपको क्या बताऊं मैं। नहीं नहीं आप बोलिए कि आप बस उतरिए एयरपोर्ट पे, आपका सब इंतजाम हो जाएगा सिक्योरिटी का। और हम जब वहां उतरे तो आईजी पुलिस और एवरीबडी देन कोऑपरेट, उनने, मैं मिला नहीं उनसे, हालांकि हम लोग तो जितने हम लोग यूनिट के तो उससे ज्यादा सिक्योरिटी थी हमारे पास, सब सीआरपीएफ एंड एवरीथिंग। तो एक वो हुआ, और दूसरा डिवाइन इंटरवेंशन देखिए कि हम पहुंचे तो डल लेक आफ्टर 30 इयर्स फ्रोज, 1991 में फ्रीज हुई थी और अब हुई है। So that is one visual which you can't get otherwise. So we could capture exactly 1990s में जेनोसाइड हुआ था, उसके आसपास उसके नेक्स्ट में जो हुआ था, यानी जब चल रही थी प्रोसेस ऑफ एक्सोडस, उसमें जो हुआ था 30 साल बाद हम पहुंचे तब हुआ, नंबर 1। तो आप ये देखिए, और दूसरा ये देखिए कि उसमें जानती है जब वो फ्रीज हो जाती है तो छोटे छोटे रास्ते बना के निकलते हैं, मैंने वीडियो भी डाला, हम अटक भी गए थे, फिर वो ऐसे ऐसे करते हैं बोट को। और उसके कुछ ही दिन पहले वो बर्फ में एक शिकारा चलाने वाला बेचारा उसमें गिर गया और वो अंदर ही डाइड, यू नो, बिकॉज ही गॉट स्टक इनसाइड। तो वो भी एक दिमाग में चल रहा था, सब डरे भी हुए थे। तो बोट ला के उसे तोड़ तोड़ के, और हमारी शूटिंग खत्म हुई डल लेक में, द मिनट आई सेड पैक अप एट डल लेक, और उसी रात को पूरी डल लेक जम गई, उसमें शिकारा भी नहीं चल सकता। तो अगर हम एक दिन लेट हो जाते तो हम लोगों को वो, हम शूट नहीं कर सकते थे, और हम अगर 2 दिन पहले चले गए होते ओरिजिनल प्लान के हिसाब से तो डल लेक फ्रोजन नहीं मिलती हमको। तो ये सब कैसे हुआ,
तो जो लोग कहते हैं कि नहीं कुछ डिवाइन नहीं होता है, कुछ मैजिक नहीं होता है, इस दुनिया में कुछ मैजिक नहीं है, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं होता है, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद नहीं होता है, अच्छे कर्म नहीं होते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, वो जब आपके साथ आएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि व्हेन यू एक्चुअली, आप एक्चुअली अगर आप अपने दिल से आप अपने को समर्पित कर दें एक कॉज के लिए, देन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग। और ये एक्चुअली ये एक मतलब डिवाइन चीज ही हो गई, ये ईश्वर का आशीर्वाद ही था। 3 बार हम कश्मीर में फंसते फंसते बच गए। मतलब जो नुकसान हुआ वो तो अपनी जगह है, बट अगर हम वहां चले जाते उस 16-17 तारीख की जो हमारी टिकट्स थी, तो हमारा वापस आना मुश्किल था। देन वी वुड हैव बीन स्टक देयर यू नो विद द एंटायर यूनिट। तो वो हमारा टल गया। हम जब वो खराब मौसम की वजह से व्हेन द एयरलाइन डिसाइडेड कि नहीं आज नहीं जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने बड़ी बेमन से फ्लाइट कैंसिल की। वो अच्छा हुआ क्योंकि अगले 4-5 दिन तक तो फ्लाइट्स निकली ही नहीं बम्बई से। उसके बाद तीसरी बार भी हम जब अटके तो इसी की वजह से अटके कि वहां पे इतनी ज्यादा वो एक दिन वो सनलाइट हो गई थी कि उसकी वजह से सब और -डिग्री में टेम्परेचर चला गया और विजिबिलिटी वहां पे खराब हो गई। तो कहीं मन में मेरी आशंका थी कि ये कहीं साइन तो नहीं है कि आप ना जाओ कश्मीर। ये साइन तो नहीं है, ये होता है मन में, ऑल्दो आई एम नॉट सुपरस्टिशियस, पर क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही इतना सेंसिटिव है। तो मैंने विवेक से कहा भी, एंड आई सेड मुझे कहीं ऐसा लग रहा है, एंड ही वाज लाइक, ही सेड यू आर सेइंग दीस थिंग्स, आई मीन यू आर लाइक द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन। आई सेड मुझे लग रहा है, तो जस्ट टॉक टू मी। एंड ही सेड अब चाहे जो हो जाए मैं तो कश्मीर जाके शूट करके ही रहूंगा। सो आई सेड ओके, आई विल गिव इट वन मोर ट्राई जस्ट फॉर योर यू नो enthusiasm, योर ऑप्टिमिज्म। पर इसके बाद अगर वापस नहीं हुआ तो मैं आई एम कैंसलिंग द कश्मीर शेड्यूल। दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज्ड टू गो देयर, बट वी वेंट दैट लास्ट टाइम एंड वी फिनिश्ड द शूट। I mean, this is very surreal in a way, and that's not superstition. That was your intuition, and because this project seems to be like divinely guided in a way, वो चल रहे हैं तार और वो jigsaw में puzzle एकदम fit हो रहा है. So yeah, that was intuition, not superstition for sure. I just want to ask you one thing. Pallavi, you're acting in the movie, are you not? Yes, I am. तो एक प्रोड्यूसर रिसर्चर वो एक अलग पर्सपेक्टिव होता है जब आप एक इस प्रकार के स्क्रिप्ट पे काम करते हैं एज एन एक्टर। हाउ व्हाट आर इमोशंस, how did what did you feel and how did you channelize all that? I'm sure it might not have been so easy. मैं तो विवेक shot my portion in the last 3 days of the film. तब तक तो मेरी शूटिंग ही शुरू नहीं हुई थी, और मैं वो मोटरसाइकिल रेसिंग में नहीं, वो अपनी मोटरसाइकिल शुरू करते हैं रुंग 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 चलता है, बट वो आगे नहीं जाती बाइक। तो मेरा 27-28 दिन मेरा वही चल रहा था। And I was like, start my work, I'm dying to work in this film, start my work. Because मेरा जो कुछ भी हम लोग शूट कर रहे थे उससे इतना अलग हटके है मेरा कैरेक्टर पूरा। Unfortunately, I can't talk about it right now, but yeah, of course. I loved playing this role because it is so different from what I am, how I think, what my leanings are in life. तो बहुत मजा आया करने में। This was like a real challenge as an actor because कुछ रोल होते हैं आप उसके साथ बहुत आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो निकल जाते हैं, बट कुछ रोल ऐसे होते हैं कि जो दूर दूर तक आप से कुछ लेना देना नहीं होता है। उन रोल्स को परफॉर्म करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, टॉकिंग फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। But yes, managing too many things and wearing too many hats can be very difficult. तो मैंने so it was good in a way कि लास्ट के 3 दिन में मेरा काम हुआ था। So I had given strict instructions to my production team that I am not a producer. मैं सारे नाटक करूंगी, मैं सारे अपनी फरमाइशें रखूंगी, मुझे ये लाओ, मेरे लिए वो लाओ, मेरे लिए वैनिटी चाहिए और सब करना पड़ेगा तुम लोगों को। आई एम नॉट वेयरिंग अ प्रोड्यूसर्स हैट फॉर 3 days. Brilliant. तो वो करना पड़ता है because it becomes difficult otherwise, you know. Yeah, so before I put my next question to Vivek ji, I just wanted to tell you कि पिछली जो भी 3 मूवीज लगातार हमने देखी हैं,
we have seen you that, you know, the characters you play are like, even if you don't identify with those personally, I mean, you have that flair, you carry it out with aplomb. So I just wanted to compliment you on your performance. Vivek ji, ये इतना गंभीर विषय है, I mean, इसका screenplay, obviously, writing, script and all, dialogues, etc. But when you are shooting certain scenes, obviously, I don't want you to talk about the movie, of course, but there would have been scenes which would shake any human being at the core, you know, irrespective of faith or whatever, because what transpired was a human tragedy of a scale hitherto not seen in the 20th century at all. So how was it, how did you detach yourself from what was unfolding in the shoot? क्या बोलूं मैं, यानी संभव ही नहीं है, इसको तो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता. इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड. मतलब आदमी, देखिए हम लोग क्या ना, इमोशंस को हंसने और रोने और गुस्सा, 3 चीजों से ही जोड़ते हैं. कि कोई बहुत हंसा मतलब बहुत मजा आया, कोई रोया मतलब बहुत दुख हो गया, गुस्सा आ गया मतलब यू गॉट फ्रस्ट्रेटेड. तो मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो आंसू तो देखिए निकल ही आते हैं इधर उधर. एक्चुअली एक दिन तो इतने दिन से सब लोग, ऐसा कोई दिन नहीं था डिम्पल जी, when people were not crying. And people, I don't mean actors. Actors तो 20 दिन लगा के भी रो लेते हैं. पर people who were totally unaware, disassociated with the subject, who had nothing, I mean, who had no business to be involved, even every single day they were crying and they used to cry. क्योंकि मेरे साथ ये हो गया कि I somehow, जैसे कोई जब डेथ हो जाती है घर में, तो आप घर में आपकी माँ या दादी या पिताजी कोई कैसे होते हैं, who holds himself, और वो नहीं रोते हैं वो लोग, क्यों? उन्हें लगता है मैं रोऊंगा तो बाकी लोग भी दुखी हो जाएंगे. वो कहाँ जाए? तो 13 दिन तक, जब 13वीं होती तब तक वो अपने को होल्ड करके रखते हैं. And it happened when my mother had died. सब कुछ हो गया. It's only on after 13th or 14th day, जब सब चले गए, सब कुछ हो गया, that was the only time I cried. And इसमें भी ऐसे ही हुआ था. मैंने कहा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं बस कर्मठ एक कर्म की तरह से मैं कर रहा था कि आई हैव टू नाउ एग्जीक्यूट इट. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं कल, अभी तक नहीं किसी को बोली थी, कल जब रैप हुआ, इट्स अ रैप, हम गाड़ी में बैठे, उसके आधे घंटे बाद मैंने पल्लवी को ये बोला, और मैंने, अब 2-3 और लोग थे, मैंने कहा देयर वाज नॉट इवन वन डे ड्यूरिंग द शूट, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैं सुबह उठता था 3:30-4 बजे, मेरी नॉर्मली नींद खुलती थी, एंड द फर्स्ट थॉट यूज्ड टू बी इन माय माइंड वाज अ कैलकुलेशन कि अच्छा कितने दिन की शूटिंग हो गई है, कोविड अगर होता है तो कितने दिन लगते हैं पता करने में, 5 दिन तक तो कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, अच्छा तो अगर 5 दिन बाद हो गए तो बीच में एक दिन ये छुट्टी है, तो एक दिन वो उसमें निकल जाएगा, तो हाउ मेनी, कितने दिन शूटिंग रुकेगी अगर मुझे कोविड हो गया तो, किसकी क्या डेट्स के कैलकुलेशन है, ये हो गया तो मैं क्या बैकअप करूंगा, हाउ विल आई डू इट, अच्छा क्या मैं होटल के रूम से कर सकता हूँ, कैन आई जस्ट, every single day I had this calculation in my mind, and that was because मुझे ऐसा लग रहा था कि ये अगर अभी कहीं रुकी तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते, दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी वी है. तो जैसे कहते हैं कोई धक्का मार के, और इतने 500-500 एक्स्ट्रा के साथ हमने शूट किया, एक्स्ट्रा मतलब जूनियर आर्टिस्ट के साथ शूट किया, इतनी बड़ी कास्ट, 20-25 लोग एक वक्त में, 8-10 तो कास्ट के लोग हो गए, 150-200 लोगों की, 250 लोगों की यूनिट, सबके साथ शूट करना इज, तो पर फिर भी हम निकल गए. पर एक दिन ऐसा हुआ, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड, अनुपम खेर का एक सीन था, अब वो मुझे नहीं पता कि वो अच्छा था कि बुरा था, रोने वाला था नहीं रोने वाला था, क्या था मुझे अभी भी नहीं पता है, बट आई जस्ट व्हेन आई वेंट बैक टू टेल हिम, यस कैसा हुआ विवेक, कैसा पूछते हैं, हाउ वाज इट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. और मेरा अनुपम खेर के साथ ऐसे रिश्ते नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को हक करें, वैसे रिश्ते नहीं है मेरे की, और मिले और बडी, वी आर नॉट बडीज. I cried so much. I mean, just holding him. I don't know. और सब थे वहां पे, शायद इसलिए था कि जब भर जाता है बहुत दिल में. और उस दिन ऐसा भी हुआ था कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से था कि अब मुझे कोविड भी हो जाए तो 5 दिन तो शूटिंग के निकल ही जाएंगे देहरादून में. तो या सो इट वाज कैथार्टिक फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस. आप कितना भी इंटेलेक्चुअलाइज कर लें चीजों को, कितना भी आप लिख लें पेपर पे, कितना भी रिसर्च कर लें, when they start happening in front of you, you know,
मैं बताना अभी इट्स टू अर्ली फॉर मी टू टेल, पर हमने एक सीन रिक्रिएट किया था देहरादून में। वो शायद पूरी कश्मीरी ट्रेजिक हिस्ट्री का सबसे डिफाइनिंग सीन है। एंड तो हमने जब वो किया तो उसके बाद हमें एक सीन और शूट करना था। एंड पल्लवी वाज फॉर सम रीजन शी हैड टू गो टू द बेस, प्रोडक्शन बेस। और जब हम लोग शूट करके आए तो नॉर्मली फिल्म लाइन में ये होता है कि नेक्स्ट सीन की प्रेपरेशन इमीडिएटली चालू हो जाती है, या लोग पैकअप अनाउंस कर देते हैं अगर खत्म हो गया तो। हम लोग लौट के आए तो सम 50-60 ऑफ अस, बाकी तो 150-200 लोग अपने अपने काम में, कोई कॉस्ट्यूम उतारने चला जाता है, कोई कुछ लोग बिजी हो जाते हैं, पर कैमरा टीम, डायरेक्शन टीम, बाकी लोग, हम लोग एक जगह आके बैठे, इतनी जरा सी जगह थी, एंड नोबडी स्पोक टू ईच अदर, नोबडी अटर्ड अ वर्ड। हम चुपचाप बैठे ही रहे, किसी को पता ही नहीं था करना क्या है, इतनी हॉलोनेस, एक ब्लैंकनेस रियल। और वहां से पल्लवी इज कॉलिंग मी पीछे से, कह रहे हो खेर साहब, कह रहे हो उनका सीन करना है, उनका सीन करना, तुम लोग कर क्यों नहीं रहे हो, तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो? And we couldn't even say whether it's a pack up or it's not pack up. You know, तो ये जो ह्यूमन इमोशंस हैं, कई बार हम लोग, अब बहुत एक घमंड भी होता है कि हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, ये तो हम जानते हैं, पर कुछ ऐसे ह्यूमन इमोशंस हैं जो आपको जिंदगी में एक्सपीरियंस करने को मिलते भी नहीं है। और आई थिंक थ्रू दिस फिल्म आई हैव एक्सपीरियंस सम रिएक्शन, सम इमोशंस, सम अंडरस्टैंडिंग्स अबाउट लाइफ, जो यानी कुछ भी कर लो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यू स्पेंड, वो हो नहीं सकता है। तो जैसे वो स्पीलबर्ग की जो फिल्म है शिंडलर्स लिस्ट, इतना उन लोगों ने सब, हॉलीवुड, आप अमेरिका जानती है कितना प्रेप करके काम करते हैं, सब करते हैं। एंड पर उसका इंटरव्यू मैंने देखा था, जब उन्होंने रियल लोगों को बुला के एक सीन रिक्रिएट किया था, सो ही सेड आई जस्ट स्टॉप्ड एवरीबॉडी, कि कुछ टेक्निक नहीं है, कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं है, लेट देम जस्ट बी। एंड he said उसके बाद सारी जिंदगी जो थी वो बेकार हो गई, और he understood life very differently. So अगर मैं ईमानदारी से बोलूं तो जो मेरा इमोशनल साइड है, I would say the emotional विवेक अग्निहोत्री is reborn. मैंने भी वो इमोशन एक्सपीरियंस कभी किए नहीं थे। Wow, this is, I mean, I'm listening to you, and this is a virtual world, but still the emotion, it's so palpable that even I'm like kind of, I can feel what must have transpired there. पल्लवी जी, मूवी रिलीज कब हो रही है? मूवी रिलीज करने के लिए सब हमारे पीछे पड़े हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, पर मैं बहुत जल्दी नहीं करना चाहती, क्योंकि जितना मतलब हमने काम जो भी किया है, पिछले 10 तारीख को हमारी फिल्म शुरू हुई, 10th of December we started the shoot, we finished the shoot on the 15th of January. So we shot for about 28-29 days, but we were working for 12 hours, you know, every day. और मतलब 12 घंटे की तो हमारा दिन होता है, लेकिन आउटडोर में हमेशा आपके टीथिंग प्रॉब्लम होते हैं किसी भी नई लोकेशन पे, तो यू एंड अप वेस्टिंग अ कपल ऑफ आवर्स इन द मॉर्निंग, सो देन यू एक्सटेंड, क्यों आप 12 के 14 घंटे हो जाते हैं फिर। तो चूंकि हमारी हर दिन हमारी लोकेशन बदल रही थी, इस फिल्म में कोई एक फिक्स लोकेशन थी नहीं, सो वी हैड दिस प्रॉब्लम एवरी डे, और मसूरी में पूरा सब यूं है, तो और सड़कें छोटी हैं, so for the tempos to reach there in time, so it was like a production nightmare in a way, to execute the shooting and start the shooting in a given time. तो उसकी वजह से जो हमारे working hours बढ़ते गए, so we were just calculating this morning that within the last 45 days we have worked more than 360 hours, and not just me and Vivek, the entire unit. We were constantly 5 घंटे की 4 घंटे की नींद, and then we were back, and every single person in the unit, our HODs, our the crew, our spot boys, costume team, makeup team, everybody was like giving it their best. तो हम जितना टाइम लगा था रिसर्च करके ये फिल्म बनाने में, तो खैर उतना टाइम तो नहीं लेंगे, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में आई नीड सम टाइम, तभी ये
ये फिल्म जो आनी है लोगों के सामने, once it releases in theater, then फिर वो फिल्म हमारी नहीं रह जाती, फिर वो लोगों की फिल्म बन जाती है। तो वो जब तक वो चिजल कर करके एकदम परफेक्ट जब तक नहीं होती, तब तक मैं चाहूंगी कि थोड़ा समय लूं। कुछ एक एम्बिशियस लोग हैं, कह रहे हैं अप्रैल में फिल्म रिलीज कर दो। तो तब तो नहीं होगी, पर बहुत देर भी नहीं करेंगे हम। आई थिंक somewhere around mid 2021 is what we are Okay, so looking the first half of 2021 perhaps could be the release of Oh yeah. Vivek says yes, I'm still saying, we will go by what the producer tells us. परसों 19 जनवरी है और अभी हमने 2 दिन पहले उसको शूट भी किया था। तो जिन वो सब लोग जिनके परिवार में कोई लॉस हुआ, वो लोग जिन अपने घर छोड़ के जिनको निकलना पड़ा, वो सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि। और ईश्वर जरूर बहुत जल्दी ऐसा होगा, क्योंकि मैं परसों ही हम लोग कश्मीर से आए हैं कि एक बार फिर सब अपने घर जा पाएंगे। तो आप सबको श्रद्धांजलि। एंड डिम्पल जी, आपको स्पेशली बहुत बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू फॉर पुटिंग दिस शो टुगेदर। यू क्यूरेटेड इट सो वेल, एक एक थीम, एक एक सब्जेक्ट, अमेजिंगली डन। सो आपको और पूरी कम्युनिटी को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों ने हमारे साथ इतना समय बिताया, जबकि आप इतना स्ट्रेनुअस शेड्यूल कंप्लीट करके आए हैं। It's been an absolute delight. Also, the Kashmir Festival, as I said, is about showcasing the contribution of the region and its, original people, the indigenous community, to the human civilization and how they've been contributing. Despite what has happened to these very people over 7 centuries, 7 times. This movie for a whole community is a very momentous occasion. I mean, you know it, and we are so looking forward to seeing on screen and through you telling the world what happened to us. And for me, it is my lived reality too. I was young and I remember not so clearly now because memory fades, but considering that how people are trying to completely obliterate our lived reality, projects such as yours, this is a pioneering project. This is a divinely guided project. This is a project which shows purpose. We hope that it is a great commercial success and that it also inspires more and more creative people to be more authentic and talk about what happened to us. So with that, I would just thank you again on behalf of GKPD and I am Buddha, because now we are one team. And I hope the audience liked today's show. Make sure that all of you watch the Kashmir Files when it comes. We have to make it a success. It is our story. And with that, this episode comes to an end, but the Kashmir Festival continues. The next 3 episodes that we have aligned for you are a little different from what you would have witnessed so far. So we've talked about contribution. We have showcased how we have contributed to various fields. We've also now talked about a movie that will bring to light what happened in January 1990. So from tomorrow onwards is the time that we tell you exactly what happened till January 1990. Tomorrow's episode will talk about how Adharma started rising in the valley. On 19th January, we will have kin of those who were killed during that genocide and exodus. And on the 20th, we will have an episode to talk about resurrection. We thank you for your patronage and your encouragement, because that is the energy that has kept us going. And we look forward to your continued participation in the Kashmir Festival.